सुना है कभी लेंस मेकर फॉर्मूला? नहीं। Simple है बहुत, quite easy. I think we're live now. So theoretically, what it is if you're given, if you have to construct a lens in the factory, right? There has to be a way, right? कि कैसे बनाए उसको. दो साइड होती हैं उसकी, curved side, और एक मटेरियल होता है आपके पास, right? So you have, for example, a convex lens. So it has a refractive index. Yeah. That's your material property, optical property. Yeah. And then you have a curved surface which you can see is on the left hand side, ये वाला. ठीक है, तो ये इसका एक radius of curvature है because this basically is part of a circle. Okay? Yeah. Okay, the other side also has a radius of curvature. तो जो right वाला है उसका radius of curvature यहाँ से. Okay, it's a circle which is like maybe here. So it's a part of a circle like this. Yeah. तो जो एक तो आपको मटेरियल चुनना पड़ता है, you have to select material. And the second thing you need to do is to select the radii of curvature. This is your R1 and this is your R2. So what does it give you? It tells you what will be the focal length of this lens. ठीक है? This is the lens maker formula. That's all. So F is the focal length. Yeah. Mu is the refractive index. R1 is the radius of curvature of the first lens surface. Yeah. Which is positive if the surface is convex, negative if it is concave. And R2 is the radius of curvature of the second lens surface. Okay. So इसको basically जो इसकी application है, it is only for thin lenses, remember. Okay. Thin lens. Very thin lens. We use this approximation. Okay. So sometimes what happens is both the surfaces are convex. So R1 and R2 become positive. If both the surfaces are concave, then it becomes both R1 and R2 are to be taken negative. And sometimes it's a plano-convex and plano-concave. Plano का मतलब है कोई कर्व ही नहीं है, तो रेडियस जो है उसका इन्फिनिटी मानते हैं. प्लेनो वर्ड लिखा हो तो एक साइड का रेडियस जो है इन्फिनिटी लेना होता है. I'll show you the diagrams, don't worry. But broadly मैं बता रहा हूँ यही है फॉर्मूले में और कुछ नहीं है. So what you do is you take two glasses of some radius of curvature and material and some refractive index, join them, and thin lens. The radius of curvature के मुकाबले the lens is very thin. Radius of curvature कितना ही बड़ा हो सकता है, but lens की thickness बहुत छोटी होती है. अच्छा. Okay, so using this you can produce desired. What's your goal? कि मुझे एक convex lens चाहिए इस focal length का, right? You want a focal length of the lens. Now, how do you do that? Lens maker formula comes to your rescue. ठीक है? हाँ. Okay. तो बस इसी में be careful about the sign convention that R1 and R2 को आप नेगेटिव ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, क्या कर रहे हो, बस रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है टोटली. So the ray of light comes in, whatever light comes in, जो भी लाइट आती है वो यहाँ आई, टेंस मीडियम में एंट्री आपकी, रिफ्रैक्ट हुई, रेयर मीडियम में है, रिफ्रैक्ट हुई. अच्छा. That is what it is actually. The lens, right? Lens is nothing but a way to use refraction to generate a focused image, image in a certain manner, right? So let me just reiterate one more thing, which is very important, is the sign convention. जो मैंने जल्दी थोड़ा बोल दिया. Okay, so अभी जो हमें lens दिखा रहे हैं, that is biconvex lens. अच्छा. दोनों side ऐसी हैं, right? So let's just quickly go through the. Tell me when the image you can see it. Yeah, I can see. Okay.
So the first surface Hmm. of convex lens is convex if Hmm. the light is coming from the left, Hmm. which is the first surface, bulges outwards towards the light. The center of curvature Hmm. of this surface is on the right hand side of the lens. Hmm. That is in the direction. Obviously, हमने ऐसे बनाया तो bulging. अगर ये ऐसे आ रहा है, so it is bulging towards the light, ना? Yeah. Yeah, this is bulging away from the light, the other one, right? So Okay. R1 is positive. Hmm. Let's look at R2. The second surface is also a convex, but curved in the opposite direction. Obviously, अगर आप एक ऐसे curved है तो दूसरा इस तरफ curved है, Hmm. right? The center of the curvature of is on the left hand side of the lens, Yeah. opposite. So ये है इसका center of curvature इस तरफ. It's a part of this big circle, right? Yeah. So it is taken as negative. So Sure. this is for convex lens, right? So you can read the summary. Hmm. ठीक है. Right? That मतलब इतना simple है, अगर ये याद हो जाता है Hmm. तो done, right? So if you're given a biconvex lens where it Hmm. says the first surface is 10 and the Hmm. second surface is 15. Hmm. So first surface R is equal to 10, second surface R is equal to minus 15. Put the values, mu will be given, calculate the focal length. Okay. Yeah. Let's go to the second lens, which is concave lens, which we see. Okay. उसकी साइन कन्वेंशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वो तो वैसे ही समझ में आ गई होगी अब तक. ये कोई डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको. Hmm. फैला देता है, राइट? तो convex lens is converging lens. Converges everything. What is a sign convention? This is a sign convention. Let's read it. Right? So the first surface. So concave lens typically looks like this, right? ऐसे दिखता है. It doesn't bulge in the center. It actually is दबा हुआ होता है यहाँ पे, right? In the center. Hmm. So if the light is coming from the left, the surface curves inward from the light. The center of curvature of this surface is on the left hand side. Obviously, if I have to draw a circle of which it is a part, right? So the circle will be for the first surface looking like this on the left hand side. Oh yeah. ठीक है है. ना? वो सर्कल तो जिस जिस सर्कल का ये पार्ट है वो तो लेफ्ट पे है ना. Hmm. तो उसका कंपास रखोगे तो कहाँ रखोगे? लेफ्ट पे, राइट? सो योर radius of curvature is this, right? So Hmm. it will be negative. Yeah. It is away from the light. Light is coming from the opposite direction like this. Hmm. And now look at the other one. Other one, it is part of the other circle. Yeah. Sorry, ये क्या हो गया है? Write this. Hmm. You can see it is in the direction. अगर radius draw करना पड़ जाए, so यहाँ compass रखेंगे center में. Rightward. Hmm. इसका radius of curvature is going to be Positive. positive. That's your sign convention. If you know the sign convention, you're Yeah. good to go. Hmm. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर लो. डेफिनेटली थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं इसके अंदर हम क्वेश्चन के अंदर, अच्छा. बट दिस इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट. Hmm. Yeah. ठीक है? हाँ हाँ. ओके. वन टॉपिक डन.
let me give you a question, okay? Hmm. Focal. सेकंड वाला होगा। क्या है सेकंड? Yes. नॉट द No, no, no. A. It is a correct, right? अच्छा, लेंस फिगर फॉर्मूले में क्या आता है? यही आता है। फोकल लेंथ आती है. हम्म, It relates the focal length to what? Refractive index and radius of curvature. या So correct explanation. अच्छा ठीक है। Okay. Why do you think the explanation is not correct? मतलब क्या गलत लगा उसके अंदर भाई? पता नहीं, लाइक फर्स्ट वाले में तो बस इतना बताया था कि लाइक आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड है। लाइक सेकंड वाले में इट वाज अबाउट द फॉर्मूला, सो मुझे हम्म. लगा कि मे बी Okay. मतलब मतलब वही क्लैरिटी नहीं थी क्वेश्चन के कि अंदर हाँ, बहुत, राइट? बट दोनों कंफ्यूजन है। स्टेटमेंट सही हैं. हाँ, ऐसा या हो सकता है कि लगा हो. Next, just give me 1 second, okay? Okay. ट्रू और फॉल्स, दिमाग लगा के बोलना, ठीक है? यू नो द फॉर्मूला नाउ? या ट्रू और फॉल्स क्विज है. हम्म द फोकल लेंथ विल डिक्रीज. हम्म मैम आगे. द फोकल लेंथ विल डिक्रीज हम्म if the refractive index increases. Give me 1 second. सोचो. The या focal length will decrease if the refractive index increases. हाँ जी. हम्म The refractive index decreases, या increases, sorry. The हम्म focal length decreases. True or false? True or false? लिख लो ना फॉर्मूला. हाँ नहीं, फॉर्मूला तो 1 by mu, sorry, 1 by f. या हाँ, लिख लो. And then analyze it. मन में करके देख लो.
रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, ठीक है। द क्विज इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ट्रू। इंक्रीजेस। ट्रू, सही है। ट्रू। छोटा हो जाएगा ना नंबर या उल्टा करने में। ओके, नेक्स्ट। इफ द लेंस बिकम्स लेस कर्व्ड, हम्म। कुछ नहीं बोलूंगा इसके अलावा मैं, राइट। ठीक है। द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, ट्रू और फॉल्स। लेंस। ट्रू। लेस कर्व्ड। ट्रू। ट्रू, व्हाई? लेस रेडियस जो कर्व्ड, कम रेडियस ऑफ होता है। कर्वेचर इंक्रीज हो गया। हाँ, रेडियस कम ऑफ होता है। कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा अगर ना लेस कर्वी होगा तो। मतलब इफ यू आर मोर कर्वी योर रेडियस इज स्मॉल, राइट। सही। इफ यू आर लाइक दिस, हम्म। इफ यू आर लाइक दिस, राइट। वेट, सॉरी, मैं वाइट यूज कर रहा हूँ। इफ यू आर लाइक दिस, या। your circle is small, right, which you're part of. हम्म। But if you're like this, अच्छा। तो या। आप फ्लैट हो ना ज्यादा, आपका कर्व कर्व बहुत हम्म। छोटा नहीं हुआ। या तो रेडियस बहुत ज्यादा होगा। जी, रेडियस ज्यादा हो गया तो क्या होगा फोकल लेंथ को? इंक्रीज। इंक्रीज, यस, राइट। दोनों से लाइक फोकल लेंथ जो दोनों से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, इट्स 1/f ना, दोनों में ही तो 1/r आता है। हम्म। इफ दिस बिकम्स हाई, हम्म। सॉरी लेट मी जस्ट, इसको मैं थोड़ा लपेट देता हूँ। इफ दिस बिकम्स हाई, या। दिस नंबर बिकम्स स्मॉल, हाँ। द गैप बिटवीन दीज टू रिड्यूसेस। या। If you invert it, so you're dividing with less gap. अच्छा। फोकल लेंथ को उल्टा नहीं करोगे, हाँ हाँ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे अगर, हम्म। एक आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कर दिया, हम्म। ये वाला, राइट। सो योर आर increases, हम्म। right? So it becomes double, for example, right? हम्म। So your new focal length will be mu minus 1, 1 upon 2r1 हम्म। minus, दोनों का बराबर था मान लो, ठीक है। by convex. और ठीक है। This is your new focal length. Your या। old focal length is this, right? हम्म। हम्म। So what's your f dash equal to? It's mu, sorry, 1 upon f dash, mu minus 1, हम्म। and this will 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर हम्म। 3/2r1 आ जाएगा ये, और या। ये 1/f जो है इसमें आ जाएगा 2/r1. हम्म। So f is equal to r1/2, अच्छा। and f dash is equal to 2/3. हम्म। 2/3 है ना ये, उल्टा करने पे दिस इज 3/2. So I'm just inverting this expression, f dash या। upon mu minus 1. हम्म। अच्छा। है ना? या वो Made आर इंक्रीज sense? करने पे एफ डिक्रीज हो गया। हाँ और सिमिलरली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज होगा तो एफ डिक्रीज होगा। हाँ, अच्छा। अभी तो करा हमने। या। ये ठीक। म्यू नीचे आ रहा है ना, हम्म। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बढ़ाओगे, माने लेस कर्वी रखोगे, हम्म। देन फोकल लेंथ विल, सॉरी, इट विल इंक्रीज। फोकल लेंथ बढ़ गई ना। अच्छा, क्योंकि आर इंक्रीज होगा। हाँ, देख लेते हैं ना करके। आई एम सेइंग इफ यू हैव 1/f is equal to mu minus 1 अपॉन 1r माइनस r, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर आइडेंटिकल है बाई हम्म। कन्वेक्स में, राइट। हम्म। दूसरी फोकल लेंथ इज म्यू माइनस 1, 1 अपॉन 2r हम्म। माइनस, दूसरे की सेम ही रहने देते, ठीक है। तो ये 1 अपॉन f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1
1 by 2r plus 1 by r is Yeah. equal to mu minus 1 LCM में 2r 1 plus 2 1 upon f dash is equal to mu minus 1 3 by 2 r. Yeah. ठीक है. So what's your f dash equal to? 2 by 3 r divided by mu minus 1. तो 3/2 आर नहीं था, एक डिनोमिनेटर नहीं था. देखो ये तो 1 by f dash है ना, हाँ. तो मुझे निकालना तो फोकल लेंथ है, हाँ. तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा. जो 2 इधर चला जाएगा, 3 हम्म. नीचे आ जाएगा, म्यू माइनस 1 भी नीचे आ जाएगा, ये आर भी नीचे आ जाएगा. लेकिन आर पहले नीचे नहीं था. अच्छा ये सॉरी, ये आर है यहाँ पे, सॉरी. हाँ ठीक है, 2 या. आर ऊपर होगा. ठीक हम्म. है. हाँ, दिस 2 आर विल गो अप. या. नॉट इज करेक्ट. ठीक है. हम्म. और 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर हम्म. इंटू म्यू माइनस 1. या. सो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 2 बाय आर हम्म. म्यू माइनस 1. या. So f is equal to r by 2 mu minus 1. हम्म. This is 0.66 divided by mu minus 1. अच्छा. This is 0.5 हम्म. upon mu minus 1. अच्छा. कौन बड़ा है? ये बढ़ गया ना? हाँ. 0.66 is bigger, right? या. So if you make it less curvy, you will weaken the lens. उसका focal length कम हो जाएगा. Focal length कम करने का मतलब है उसकी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पावर कम हो गई. पहले वो बिल्कुल सामने ही कन्वर्ज कर देता था इमेज को, ऐसे आती थी पैरेलल रेस. हम्म. हाँ ऐसे. अब दूर जाके कन्वर्ज करेगा, वीक हो गया ना. अच्छा. लेस फोकल लेंथ हाँ. मींस इट्स अ वीक लेंस, इट इज नॉट एबल टू डू इट्स फंक्शन ना, रिफ्रैक्शन कम होगी. अच्छा. A powerful lens will either be able to diverge a lot or converge a lot. हम्म. Very powerful lenses can do this. You send a power ray of light, हम्म. they will converge it here. कितनी अच्छा. जबरदस्त बेंडिंग कर दी. हम्म. और अगर एक वीक लेंस है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम लिया, घटिया हम्म. क्वालिटी का लिया, वो जब रिफ्रैक्ट होगा तो इमेज यहाँ बनेगी दूर. अच्छा. उतनी बेंडिंग नहीं करा सका ना, इतनी ज्यादा बेंडिंग. या. यहां जाना तो और इस लेवल तक बेंडिंग करा दी, इतनी सी करा पाया बस. हम्म. सो फोकल लेंथ जो होती है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो लेंस की कैलिबर जो है डाइवर्जिंग और कन्वर्जेंस की, उसको तय करती है, डिसाइड कर लेती है. मेड सेंस? या. ऊपर जो एफ डैश है वो एफ से लाइक बड़ा आया है. हाँ 0.66 आया ना, ये 0.5 आया. 2 तो by मतलब 3 is एफ 0.66, राइट? इंक्रीज हुआ है. इंक्रीज हुआ है, यस. मतलब आर इंक्रीज हुआ तो एफ भी इंक्रीज होगा. यस, क्योंकि नीचे है ना वो. अच्छा. ठीक आप है. ध्यान से खुद देख लो ना, 1 बाय एफ की फॉर्मूले में हाँ. रेडियस ऑफ कर्वेचर्स नीचे हैं एफ की तरफ. हम्म. तो या. जैसे आर बिहेव करेगा वैसे ही एफ करेगा, लेकिन यहाँ हम्म. इनवर्स प्रोपोर्शन है. या. म्यू जो है ऊपर है, हम्म. म्यू घटेगा तो एफ बढ़ेगा, हम्म. ठीक है. राइट? फर्क या. भी तो है ना, वो कहाँ पे है, उल्टा है. या. ट्राई दिस. ये बेसिक्स हैं बिल्कुल, अगर ये समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल्स बिकम वेरी वेरी सिंपल. हम्म. इसी तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, डबल कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होगा, व्हाट अच्छा. विल बी द न्यू फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर को ट्रिपल कर दिया तो क्या होगा. ऐसे बस यही क्वेश्चन होते हैं. ट्राई दिस. Convex lens. Convex. Convex lens.
सिंपल क्वेश्चन राइट, समझ में आ गया? हम्म। नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यही है बस आपके वो नीट पीट में। अच्छा। फॉर्मूला याद है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे जो आपने पहले ही कर रखा होगा। ओके। Check the following changes in difference. ठीक है, कर लोगे ना कैलकुलेशन? हम्म। So I'm not asking you to waste your time, but please be very careful. If you appear for NEET examination, you have to be quick. Yeah. अच्छा, तो following changes in difference. Increase in the increase. Changing. So increasing the refractive index of the lens material. Sorry, what's your answer? A. हाँ, अब आपको पता है ना दिमाग में कि वो कैसे लिंक्ड है आपस में, तो आपने फटाफट कर लिया। Yeah. Lens making increase. नाउ यू नो राइट, इट इज बिल्ट इनसाइड यू क्या क्या आंसर देना है मुझे, राइट? कई बार Yeah. क्वेश्चन आता है उसके अंदर व्हाट दे डू इज, ये जो लेंस होगा ना, इसको पानी के अंदर डाल देंगे। अच्छा। तो देन व्हाट यू हैव टू डू इज, क्योंकि अब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर हम्म। नहीं है बाहर, हम्म। अब आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है ना बाहर, सो हाँ। यू हैव टू मॉडिफाई द फॉर्मूला बिट। ठीक है? सो हाँ। व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, Water. हाँ, पहले लिखोगे हाँ, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यस, लिक्विड। दैट इज द हम्म। ओनली चेंज यू नीड टू डू। अच्छा, ओके। या। ओके, और अगर प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है, तो हम्म। प्लेन वाली साइड का तो कर्वेचर इनफाइनाइट है, राइट? हाँ। उसको इन्फिनिटी ले लो, तो 1/infinity is 0। ओके। अच्छा। तो प्लेनो कन्वेक्स का मीनिंग मालूम है बाप? हम्म। Find the radius of curvature. Surface convex lens is focal length. आर निकालना है, फोकल लेंथ दे रखी है, उल्टा है। सो प्लेनो कन्वेक्स है, राइट? Yeah. तो जो लेफ्ट वाली साइड है प्लस वाली, वो इन्फिनिटी है।
प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स Yes. प्लेनो नहीं बोला। तो पहला अच्छा सरफेस इन्फिनिटी है। अच्छा ओके, तो मतलब नेगेटिव लेंगे ना 8। मतलब जी इनफाइनाइट है क्योंकि हम्म। प्लेनो है। R1 इज इन्फिनिटी, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी ले लो, जीरो ही है। नहीं 1 अपॉन इन्फिनिटी। R2 नेगेटिव होगा ना। R2 is negative. In a convex lens, the second या surface is negative. हम्म। This is your second surface. या कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, हम्म। नेगेटिव ना आ जाए कभी। आ जाए तो चेंज कर लेना। नहीं क्या। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल हाँ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा अच्छा, या ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे जब लेंसेस। हम्म। वी यू हाइट हम्म। 0.15 आना चाहिए आंसर। हाँ वही आ रहा है। ठीक है। तो कई बार दे मिक्स द क्वेश्चन, व्हाट दे डू इज दे पुट द पहले वो आपसे फोकल लेंथ निकलवाएंगे, सेकंड हम्म। पार्ट में आपसे इमेज और ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन पूछेंगे। फिर मिरर फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट होगा कि द ऑब्जेक्ट इज, फॉर दिस लेंस द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट सो मच डिस्टेंस, या फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। अच्छा। वो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, राइट। नहीं मुझे मिरर फॉर्मूला था उससे। लेंस फॉर्मूला। अच्छा। मिरर फॉर्मूले में तो प्लस और माइनस का फर्क होता है ना, लेंस और इसके अंदर। या हो गया, चलो एनीवे आई विल मेक यू प्रैक्टिस, बट रिमेंबर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। हम्म। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन मत करना, एक ठीक। लिमिट तक रहना बस। या एसएल आपने खत्म कर दी जेई छोड़ के, तो हम्म। आपका पूरा नीट का पेपर ठीक होगा। ओके। हम्म, पूरा पेपर वहीं से टुपा हुआ आता है। हम्म। सिर्फ जेई मेंस के क्वेश्चन मत करना, बाकी सब कर लेना। अच्छा ठीक है। A thin lens is center of curvature C. Calculate the यू कैन सी द स्ट्रेंज वे ही हैज मेड, राइट, इट्स अ मून। yeah. इवन इफ द he has given you two curvatures, both are on the other side, so both curvatures are positive actually, because जिस सर्कल का भी ये हिस्सा होंगे, वो हम्म। सर्कल ऐसे होगा ना, तो हाँ कंपास हम राइट साइड पे रखेंगे। या तो दोनों ही पॉजिटिव है रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। ये देखो, ये पहला, हाँ इसका राइट वर्ड है, या और दूसरे का भी देख लो आप। हाँ हाँ ठीक है। मेक सेंस। या गुड। तो ठीक। डिसीजन तो सिर्फ यही लेना है कि प्लस है या माइनस है, शेप देख के सर्कल हम्म। बना लो और देख लो, राइट की तरफ है पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव। दी एंड। मतलब वो जो लाइट की जो रेज होती है उसी की डायरेक्शन में। उसकी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है ना। हाँ, ठीक लाइट है। की रेस तो ऐसे आ रही है, या ठीक। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी करो, सॉल्व करो, हाँ हाँ निकालो। ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल्स 1/5।
और 15 होगा। ठीक है। सिंपल राइट, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो क्या? फार सो गुड। हम्म। +15 आना चाहिए। हाँ, +15। ठीक है, अब मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, ये आप खुद करोगे। मैंने आपको वर्बली बता दिया है, हम्म। लेकिन आई वांट यू टू अप्लाई योरसेल्फ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एडजस्टमेंट लिक्विड के अंदर कैसे करते हैं, बढ़ेगा घटेगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है, दैट इज हम्म। विद रिस्पेक्ट टू एयर विच इज 1, बट हम्म। अगर मटेरियल बाहर 1.3 का है, देन हम्म। इट इज 1.6 विद रिस्पेक्ट टू 1.3, सो 1.6 डिवाइडेड बाय 1.3, हम्म। है ना? या। तो अप्लाई योरसेल्फ करो, ये करो। convex lens. Convex lens of focal length. Convex lens of focal length. Refractive index. Lenses having refractive index is 1.3. Recommended focal length of refractive made of practice index 1.6. न्यू फोकल लेंथ निकालनी है ना? हम्म। ठीक है, निकाल लो। अब लाइक इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको पुरानी वाली फोकल लेंथ और न्यू वाली। पुरानी, हाँ हाँ, उसी से आएगा, और कैसे आएगा? हम्म। ये तो कट ही जाएगा पूरा। इसको ये तो सेम ही है, हाँ। तो सिर्फ ये सॉल्व करने हैं आपको। ये यप। 1.23 है, 1.23, ये हम्म। 0.6 है। सब्ट्रैक्शन के बाद दिस इज 0.6, दिस इज 1.23, ये पॉइंट आफ्टर टू थ्री बच गया। सब्ट्रैक्शन। अच्छा अच्छा, ठीक है। और फोकल लेंथ 20 दी हुई है, तो दिस इज 20, या। एफ डैश आ जाएगा आंसर। dash dash equals to 0.6 and 0.23. Yeah. So f dash equals to into 20 by 0.23. 6. Um, 6.
कैलकुलेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी फास्ट, खाली पीली में फंस जाओगे। 52 0.52 मीटर्स, ठीक है, 52 सेंटीमीटर, बढ़िया, सेंटीमीटर। सही है। ओके, तो क्या नेचर ऑफ लेंस बदल गया या कॉन्वेक्स ही रहा? कौन? नई फोकल लेंथ भी तो प्लस ही आई है, हाँ, प्लस है। तो कॉन्वेक्स ही रहा ना, दो क्वेश्चन है हाँ इसके हाँ। अंदर। ओके ओके। टेल द नेचर ऑल्सो। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, और है कॉन्फिडेंस? हम्म। ओके, गुड। पढ़ पा रहे? हम्म। ओके, गुड। concave concave mirror kept on water is So I'll help you with something, hmm. and then so there is a diagram also. Okay, you have to use the diagram. ये मिरर है by the way, okay, so this is nothing to do with your lens and all that. अच्छा। बट अगर आप लेंस डाल दोगे तो ये मिरर वो बन जाएगा ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। हम्म। एक साइड पानी से भर दोगे तो हाँ मतलब हाँ। शीशे की जगह पानी यूज कर लिया एज अ मटेरियल, राइट? या। तो क्वेश्चन इज, when where should you place the object on the principal axis of the mirror so हम्म। that the image is formed on itself? Oh, अच्छा। where an object should be placed। पहले बात तो पानी से भरने का क्या सिग्निफिकेंस है? इफ यू फिल इट विद वाटर, व्हाट हम्म। इज द सिग्निफिकेंस? पानी भरने से ये एक तरह से लेंस नहीं बन गया आधे शीशे का? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस नहीं बन गया ये? अच्छा। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी एक साइड प्लेन है, इन्फिनिटी, हाँ। हम्म। और दूसरी साइड जो है इसकी वो नॉर्मल है। हाँ। जो मुझे लगा कि ये दिस वाटर फिलिंग बिजनेस हम्म। एक्चुअली मेक्स इट ओनली थिंग इज रिफ्रैक्शन विल नॉट हैपन, बिकॉज जो भी कुछ होगा वो वापस आ जाएगा क्योंकि ये मिरर है। हम्म। भाई रिफ्रैक्शन के लिए तो मुझे दूसरी साइड जाना है ना, हाँ। टेढ़ा होते बेंड होके दूसरी साइड से निकलना है। यहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ पे वापस जाना पड़ता है। अच्छा। मिरर है तो वापस ही आएगा ना, हम्म। रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पे। मिरर्स डोंट डू रिफ्रैक्शन, बट पानी के अंदर तो बेंडिंग होगी। अगर ये रे ऑफ लाइट जाएगी ऑब्जेक्ट से और हाँ। इधर ही बनानी है तो मतलब, अच्छा। या। तो मतलब रे ऑफ लाइट जो है हम्म। वेयर ऑन द सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब यहीं पे ये जो ऑब्जेक्ट रखा है हाँ। आपने, इसकी अगर ये है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी यहीं बन जाए, या। सेम लोकेशन, राइट? तो मे बी यू, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नोन, कॉनकेव मिरर का, हाँ। राइट? सो विच इज आर। या। तो वो जो पानी से आपने भरा है उसका सिग्निफिकेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट हम्म। इतना फर्क है कि ये जो साइड है, एक हम्म। साइड ये हम्म। काली कर दी है, मतलब मिरर बना दिए, सिल्वरी हाँ। कर दी है, राइट? या। सो जो भी लाइट है वो आधे लेंस से जो हो सकता है कर लेगी। एक यहाँ हाँ। चलेगी लाइट, एक इमेज है, एक यहाँ चली गई, शीशे से आई, हम्म। बाहर आ हम्म। गई, रिफ्रैक्ट हो गई फिर से, तो हाँ। इमेज आधे से बनेगी। मतलब एक तरह से ये वो बन जाएगा, क्या बोले, लेंस ही है लेकिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। हम्म। या। सोच के देखो, व्हाट इज, हाउ विल यू मैथमेटिकली रिजॉल्व द प्रॉब्लम? कैसे नजर आ रहा है आपको? रिफ्रैक्शन तो होनी है और वापस भी आना हम्म। है, और वापस आओगे तो देखो जितना रिफ्रैक्ट एक साइड होगे, वापसी में भी उतना ही बेंड हो जाओगे, हाँ। है ना? अगर आप यहां से चलते हो
और हम्म। ये आपकी नॉर्मल है, हम्म। आप रिफ्रैक्ट हुए, ये आई है, हाँ। ये आर है। हाँ। अब वापस चले तो वापस इसी पे तो आ जाओगे, हम्म। क्योंकि रिफ्रैक्शन अब उल्टी वाली जो है, जो डेंसर टू रेयर है वो आइडेंटिकल है। हाँ। समझ आ गया? हाँ। हाँ आ गया। तो सोचो कि जब ये वापस जाएगी और अंदर जाएगी, मैंने कुछ बोला है उसको ध्यान से सुनना, डोंट से हाँ हाँ हाँ। देखो, मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है। पहले ये अंदर जाती है, राइट? सो ये जब अंदर जाती है, सो हम्म। इट स्ट्राइक्स है, या। व्हेन इट कम्स आउट, राइट फ्रॉम, it cannot take the same path, it will move away from the normal. पहले it moves towards the normal. when हाँ you ठीक। move from या। when you move from denser to rarer, you move away from the normal, right? हाँ अवे फ्रॉम। Agreed? हम्म। तो अब मैं ये नॉर्मल बना रहा हूं मैं, राइट? सो यूज योर कॉमन सेंस, ओके, डोंट लूज साइट। ये देखो, ये हम्म। आपकी जो रे है, ये अब बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, हाँ। हो गई? या। अब आपको मालूम है नीचे टकराते रिफ्लेक्शन होनी है, हम्म। तो यही वाली रे जो है, ये वाली रे जो अब वापस चलेगी ऐसे, हम्म। जब ये यहाँ पे आएगी, इट हैज टू मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बट विल लाइक मूव। अगर सेम पाथ भी ट्रेस करे तब भी तो टेक्निकली वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही है। नहीं 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 नहीं, अगर आप इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखा रहे हो, राइट, सेम पाथ कैसे करेगी? वो तो तब पॉसिबल है ना जब जब मतलब रिफ्रैक्शन नहीं हुई है। अच्छा अच्छा। अगर एक ग्लास है सिर्फ, आपने सीधा उसको मारा, वापस आ जाता है ना वो। हाँ या। सो ये वो वाला केस है जहां पे एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ हाँ हाँ। एपरेंट डेप्थ, हम्म। एक जार के अंदर बहुत सारा पानी होता है, हम्म। वो लाइट यहाँ पे होती है, हम्म। आप ऐसे जाते हो और ऐसे जाते हो, फिर यूं हम्म। चले जाते हो आप, फिर या। आप ये लाइन पीछे खींच लेते हो। हम्म। सो व्हेन यू कम आउट, यू विल कम आउट लाइक दिस। ओके। या। सो ठीक है। योर इमेज which was object which was here, हम्म। the image will get created here. अ, अच्छा। Now the only thing is, technically with the knowledge you have of water, हम्म। R plano convex, so this is infinity anyway, right? या। And this is R. वैसे तो हम्म। इसमें लेंस का कोई कॉन्सेप्ट ऐसे मोटा मोटा लगाना, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो हो रही है देखो एक साइड पे, हाँ। आधे लेंस से रिफ्रैक्शन करवा रहे हो आप और नीचे से रिफ्लेक्शन करवा रहे हो। तो अब आपको आधे लेंस के लिए करना है जो करना है। हम्म। तो कैन यू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस जो पानी से भरा हुआ हम्म। है? निकाल के देखो आपकी, अ, क्या आता है वो। You won't be able to do because you don't know that formula. Okay, wait. So there is a formula which is lens maker formulas very closely related to it. हम्म। Let me just first tell you that formula. I think you don't know that formula as yet, right? So कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं जब ऑब्जेक्ट वगैरह भी साथ में आ जाता है। There is a short way to do it. Okay, so हम्म। good that we picked up this question, and I will just show you that formula so that it is clear in your mind. What are we talking about, right? हम्म। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो मालूम है हमें, आर, इस हाँ। राइट? सो हमें बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में, अगर हम्म। ऑब्जेक्ट एयर में है, हाँ। रिफ्रैक्शन पानी में हो रही हम्म। है ना? और एक तो हमने फोकल लेंथ निकालने का मेथड सीख रखा है, या। और एक इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही लिंक करता है सबको, हम्म। बट उसके अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस भी इंक्लूडेड है। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अच्छा सॉरी, जो हमारा लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u = 1/f, हम्म। वही फॉर्मूला हाँ।
in terms of refractive index अच्छा. of Okay. mediums. Hmm. Right? I'll just show you the formula, which I think you don't know, but let me just first introduce you that formula. कि distance formula जब हम use करते हैं, वो लेंस मेकर फॉर्मूला की दूसरी फॉर्मेट ही है. अच्छा. वो 1/f माइनस इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है ना, Hmm. उसी में उसी से डिराइव होता है. सो जस्ट शो यू द फॉर्मूला कि कैसे Okay. आपको इसको यूटिलाइज करना है. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर नीट एग्जामिनेशन, Okay. एक स्टेप में निकाल लोगे उससे. बट पहले तो ये क्लियर कर लो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ में आ गया. कहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है, कहाँ पे. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सो इट्स अ हार्ड वन, राइट. कोई Yeah. सीधा सीधा नहीं है. इसी से तो डरते हैं बच्चे सब. ये फॉर्मूला देखो आप, राइट. सो जिस चीज में इमेज जहां इमेज बनेगी जिस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हाँ. ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उन दोनों का डिफरेंस, और आर, और क्या है? अच्छा, रेडियस. रेडियस ठीक. ऑफ कर्वेचर, राइट. सिंपल. ओके. ये वाला फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस स्ट्रेटेजी कि ये जो है कैसे यूज होती है. तो अगर आप देखोगे अब आप क्वेश्चन अपना, हम्म. उसके अंदर इफ यू नोटिस व्हाट इज योर वी, राइट. योर वी इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द इमेज या. फ्रॉम द टॉप सरफेस, हाँ. या. राइट. तो आपका जो वो एच हाइट तो तक आपने भरा है उसको, हाँ. रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है. हम्म. तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया इमेज का, दैट इज आर माइनस एच. फ्रॉम वेयर डू वी मेजर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन. डिस्टेंस कहां से नापा जाएगा. एक सेकंड वापस से बताओ. ओके, सो रिफ्रैक्शन, ये डिस्टेंस कितना है. ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम क्लियरली. हाउ मच इज दिस डिस्टेंस. विच डिस्टेंस? ये वाला, अच्छा. ये. इसको मैं थोड़ा डार्क कर लूं. देखा, या. ये वाला एरो जो है. हाँ. हाँ. सो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इक्वल टू. यार मैं एक मिनट, थोड़ा सा आर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हाँ. है ना. ठीक है. हाँ. रिफ्रैक्शन कहाँ पे हुई है, यहाँ पे. मतलब जब वो अंदर बाहर गया, आए हाँ, अंदर अंदर गया से. और बाहर दोनों जगह रिफ्रैक्शन है. हाँ. ठीक है. ठीक है. हाँ. तो जो v डिस्टेंस होता है फॉर्मूले में, बी. हाँ. दिस इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट वेयर द रिफ्रैक्शन अकर्स. अच्छा. ओके. सो रिफ्रैक्शन अकर्ड एट दिस लेवल, राइट. या. गॉट इट. तो मतलब आर माइनस है. माइनस एच. अच्छा. अच्छा. दैट्स अ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि ओके. v या. भी तो निकालना है ना, फिर क्या करें. या. ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स u तो आपको दिख ही रहा है. ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, इमेज तो यहाँ बनी है. हाँ. अच्छा. हाँ. हम्म. सॉरी योर, आपको बनाना कहाँ पे है. वेट, वी हैव टू मेक, वेट, हैव वी रेड द क्वेश्चन. सो इज कैप्टन, वाटर इज poured,
क्वेश्चन में क्या पूछा था, ध्यान से पढ़ना जरा नीचे. Where should be the object so that the image is formed on itself. हाँ. तो ये तो हमारी इमेज ऑन इटसेल्फ नहीं है ना, नहीं. हमारी तो नीचे बन गई थोड़ी सी. या. तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो वेयर शुड द ऑब्जेक्ट भी, हमें तो ऑब्जेक्ट निकालना है, कहाँ रखना है भाई, ये क्या कर दिया हमने तो. उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बना दिए पहले. हमारा ऑब्जेक्ट सी पे नहीं है, अच्छा. हमारी इमेज वहां बननी चाहिए ना. हाँ, इमेज. कब होता है ये, जब when the object is, if the object is kept here for example, हम्म. so the ray of light goes here, हम्म. it comes here, हम्म. gets refracted, हम्म. gets reflected, हम्म. right? या. So now it goes back like this, हम्म. and now the object has got created here. Sorry, the image has got created on the, सेंटर ऑफ कर्वेचर. yes. ओके. Question where an object should be placed. So I am placing it at a distance x. हम्म. So u is x, and this It's distance we said is r minus h. Image. या. अगर मैं पानी नहीं भरता हम्म. तो so concave mirror water is poured and what पानी भरते हैं, where an object should be placed on the so that the image is formed on itself. On itself. हमारी तो यार इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है. बोलता है कि द इमेज शुड बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ. हम्म. तो हमारी इमेज भी फिर, अच्छा ये सी है, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर. हम्म. हम देखते हैं क्या है इसका रास, क्या है, व्हाट डू वी टेक. सो आई सेड μ2 अपॉन r minus h. या. Okay, the direction of rays is this, we are measuring against it. रेज तो ऐसे आ रही है ना नीचे की तरफ, तो अच्छा. वी आर अच्छा. मेजरिंग अगेंस्ट इट, नेगेटिव. हम्म. राइट, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द, क्वेश्चन ठीक है ये क्वेश्चन. आई एम फाइंडिंग द लैंग्वेज हार्ड टू अंडरस्टैंड कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, हमें ऐसी जगह पे रखना है. तो इसका मतलब ये हुआ ना फिर, ओ आई थिंक व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर वाज राइट, राइट. गॉट इट. जो पहले हमने बोला था दैट वाज करेक्ट देन, कि इट विल रीट्रेस द पाथ. लगता है भटक गए थोड़ा सा, मैं भटक गया. लेट मी जस्ट रीथिंक. ओके, आई थिंक आई स्टार्टेड करेक्ट बट देन आई लेटर आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ दिस क्वेश्चन. वेट. So the object is kept here. The ray of light goes in. या. It gets refracted. या. It comes back, and technically you said it should go back. हम्म. Yes, it does. And that is the only way you can have an object here. अच्छा. अच्छा. Image. या. ओके. ओके. Reflect होके वापस वहीं बनना है ना. हाँ. This is या. only an indication कि there is a center of curvature of radius r. अच्छा. C का मतलब तो R ही है ना, बस that's all. Okay. या. But technically, if you notice the, if I am keeping it at a distance x, for example, right? हम्म. So my image also gets created at x. या. That is what I'm doing. I'm retracing. It go like हम्म. this and I come हम्म. back like this. या. इसका कोई मीनिंग ही नहीं लाइन का, ये तो फालतू है, इसका कोई यूज ही नहीं है. कौन सी लाइन? ये वाली जो अच्छा. सेंटर ऑफ ओके. कर्वेचर से बनी, इसका क्या यूज है. ठीक है. या. रिफ्लेक्ट ना, कुछ पार्टिसिपेशन है ना कुछ है. हम्म. आई एम ठीक. गोइंग एंड आई एम कमिंग बैक ऑन द सेम या. पॉइंट, राइट. या. So if I apply this logic, now if I apply this, what happens? अच्छा, जिस पॉइंट पे हमारी वो हुई है रिफ्रैक्शन, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इन्फिनिटी. जिस जगह पे रिफ्रैक्शन हुई है, हाँ.
उसका आर कितना है इस वाले का, अच्छा जो इसका कंट्रीब्यूट कर रहा है रिफ्रैक्शन में? या इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, राइट? सो दिस बिकम्स इन्फिनिटी। एक्चुअली हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है ना, हम्म। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि लगाना कैसे है, राइट? तो दिस इज द दैट पार्ट ऑफ इट व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस प्लेन सरफेस, राइट? सो इसका तो आर इज इन्फिनिटी, सो दिस होल पार्ट एनीवे बिकम्स जीरो, अच्छा। 1/infinity, right? या And mu2 is the refractive index of the medium in which you bend. अब ये फॉर्मूला नहीं ठीक से पता तो कैसे करें अब इसको? So if I put the value हम्म and r is infinity, then mu of the जनरली जो mu2 होता है वो वाला होता है जहां पे इमेज जो है जिस मीडियम में बनती है। हम्म। यार मेरी इमेज तो यहाँ पे उसी मीडियम में वापस बन गई जिस मीडियम से मैं आया हूँ। अच्छा हाँ। या ऑब्जेक्ट पे तो जाके बन रही है, अंदर तो बनी नहीं। हम्म। तो मुझे ना ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। ओके। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मुझे लगता है आई विल हैव टू जस्ट डू सम रिसर्च मेरे दिमाग से। आई थिंक हाउ डू वी यूज दिस फॉर्मूला एज अ क्वेश्चन मार्क, राइट? सो ओ सॉरी, ये नहीं होता, तो फंसा दिया बुरी तरह से। रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ लेंस फॉर्मूला विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, हम्म। लेट मी फर्स्ट रीड इट फॉर यू कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट स्टैंड फॉर। आई थिंक वो कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। लुक एट दिस, this is the formula I'm referring to. Let's read. Mu1 is the refractive index of the medium where the object is located. Fine. Mu2 is या the refractive index of the lens material. अच्छा, you're not supposed to take जहाँ image बनी, ये लेंस के मीडियम लेंस का है और ये जहां ऑब्जेक्ट है उसका है। तो हमारा म्यू तो फिर वाटर का हो गया। अच्छा अच्छा ओके। V is the image distance from the lens, which is बी fine. या U is the object distance from the lens. हम्म। या R is the radius of center of curvature. But I want या to see one thing, wait. ये जो distances हैं V और U, ओके, हाँ। वो पोल से लेने हैं कि उस सरफेस से लेने हैं जहां से रिफ्रैक्शन हो रही है? वो तो वो कॉन्सेप्ट तो रह गया ना थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। मैं तो सरफेस से ले रहा था ना जहां पे हम्म। वो हो रहा था रिफ्रैक्शन। या बट वी नीड टू टेक इट फ्रॉम द जनरली सेंटर ऑफ द लेंस से नापा जाता है डिस्टेंस। हम्म म्यू जो जब नापते हैं, सॉरी, ये जो लेंस के अंदर जब हम डिस्टेंसेस नापते हैं वी और यू, हम्म। so they're measured from where? They're measured from the pole of the lens, not from the layer. या अच्छा ओके। में जो डिस्टेंस होता है यू, वो कहाँ से नापते हो आप? फर्स्ट सरफेस से थोड़ा ना नापते हैं। नहीं।
I think the distance is measured from the same place. कोई derivation तो नहीं दिख रही मुझे. I don't see any derivation. But if I take the distance v to be the distance from the lens का मतलब है from the pole of the lens, I think. From the मतलब pole. मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस यहां से नापना चाहिए. कहाँ से? मैं पहले यहां से नाप रहा था ना. हम्म ये मेरे को क्लैरिटी नहीं है कि जब सिल्वरिंग होती है हम्म तो डू वी ओके लेट्स फॉर द टाइमिंग यूज दिस लेयर ओनली क्योंकि ये रिफ्रैक्शन में हेल्प कर रही है. हम्म बाकी तो शीशा है. रिफ्रैक्शन यहाँ हो गई. तो लेट्स कीप द डिस्टेंसेस लाइक दिस ओनली, राइट, फॉर द टाइम बिंग. आई विल जस्ट चेक विद इट, राइट. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू वाटर हम्म अपॉन r minus h is equal या to 1 upon sorry minus x is हम्म equal to mu minus 1 upon infinity. ये पक्का है हाँ मुझे कि जो जहां रिफ्रैक्शन होती है उसका r लेना होता है इसके अंदर क्योंकि डू यू सी दैट देयर इज ओनली वन r हियर. या देयर आर नॉट टू r's. सो नो. आधा लेंस की वजह से जो बनता है ना डिस्टेंस हम्म वो इससे निकालते हैं जब डेरिवेशन होती है. और जो दूसरी साइड वाला r होता है हाँ तो जो पहला v निकला होता है वो हाँ दूसरे का u बना लेते हैं और हाँ, फाइनल v निकालते हैं. तो दो स्टेप्स में डेरिवेशन होती है. अच्छा. समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं. पहले r1 से सॉल्व कर लो. जो हाँ, v आएगा वो दूसरे सरफेस का u बन यू जाएगा. यू बन जाएगा. अच्छा. फिर वो जो सॉल्व कर वो डेरिवेशन के अंदर है. बाई चांस हमने वो करी नहीं है. तो अच्छा. लेट्स कीप दिस म्यू वाटर अपॉन r माइनस h इज इक्वल टू 1 बाय x. हम्म सो म्यू वाटर अपॉन म्यू वाटर सो x इज इक्वल टू r minus h upon mu water. ओके. Answer. So keep it at a distance of this much to be हाँ able to produce the image. अभी I'm not too sure V कहाँ से measure हुआ है और U कहाँ से measure हुआ है क्योंकि मैं हाँ, देखूं तो they are getting created at the same place. I would love to take minus x. क्योंकि V लाइक जो है सेम मेरा से हो रहे हैं इसलिए. हाँ because they are coinciding, right? या So mu2 upon x plus mu1 upon x is equal to infinity, right? Actually तो ये आ रहा है. हाँ तो आंसर तो उसमें आ जाएगा फिर एक्स में. सॉरी म्यू1 और म्यू2 में कोई आंसर ही नहीं आएगा ना फिर तो. सॉरी दिस इज 0. इफ यू ऐड टू नंबर्स देयर कमिंग आउट तो एक्स एक्स कट जाएगा फिर कॉमन आके. अच्छा. विच इज हाँ वेरी वियर्ड. सो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग. आई थिंक आई डोंट हैव मच क्लैरिटी. अभी रुक जाओ अब इसके लिए, ठीक है. वी ठीक विल है. डिस्कस इट टुमारो अगेन. वेट, लेट्स नॉट डू दिस क्वेश्चन फॉर द टाइम बिंग. ओके. ओके, कोई फायदा नहीं है. गोल गोल घूमने का टाइम वेस्ट होता है. हम्म सो लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू. I'll just read and I will just ओके. clarify what exactly is this concept. वो फॉर्मूला मुझे खुद नहीं याद आ रहा वो कैसे. Okay, so some lenses you have seen are made up of different material, right? So हम तो एक ही मटेरियल का लेंस लेते हैं ना अभी तक तो. बट बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली द रियलिटी इज कि एनी लेंस इज लाइक दिस, राइट. सो समटाइम्स दे गिव यू क्वेश्चंस. हमने वाटर टू एयर तो कर ही लिया. हाँ mu2 mu1 एंड mu1, राइट. सो वी हैव टू टेक. फिर हमने नेचर ऑफ लेंस भी निकाली और नेचर. हमारा जो आया था mu2 ग्रेटर देन mu1 था. ये 1.3 था, ये 1.6 था. दोनों को डिवाइड करके 1.23 रहा. तो हमने बोला ये पहले भी कन्वर्जिंग है हम्म और अब भी कन्वर्जिंग रहेगा. हाँ हाँ या. लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता. इफ आई टेक अ अच्छा. लेंस लाइक दिस 1.6 एंड हम्म बाहर इट इज 1.8 हाँ तो क्या होगा. 1/f इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 1.8 माइनस 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Do you see this number will become negative? या ये एक या. concave lens बन गया. ओ ओके. So if you immerse a lens which is converging into a liquid of higher density, it becomes a concave lens.
अच्छा, ओके ओके। यही तो हुआ ना. हम्म। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो कम्स कि बताओ अच्छा। जी क्या हुआ, अगर ऐसा है तो क्या हुआ. सो व्हाट दे हम्म डू इज दे विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट दे विल टेल यू कि हम्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का ज्यादा है या कम का है. सो लेट्स से यू आर गिवन वन क्वेश्चन. ओके, सो इट्स अ प्लेनो कॉनकेव लेंस. तो एक ठीक। सरफेस प्लेनो है. प्लेनो कॉनकेव। मैं बना रहा हूँ, डायग्राम बना देता हूँ सो दैट यू आर न्यू राइट नाउ. सो प्लेनो कॉनकेव हो गया ये. अच्छा हाँ। राइट, सो दिस इज योर म्यू वन, दिस इज योर म्यू टू एंड दिस इज योर म्यू वन. हम्म रिफ्रैक्ट होके बार बार जो भी होना, डाइवर्जेंस जो भी होनी है. पहला हम्म क्वेश्चन है, if mu2 is greater than mu1 and second is mu2 is less than mu1, what changes happen to the overall focal length or nature of the lens. तो अब इस केस में क्या होगा, डाइवर्जिंग रहेगा या कन्वर्जिंग रहेगा. यहाँ डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा. बेसिकली इट्स अ प्लेनो कनकेव, तो इट इज डाइवर्जिंग. अच्छा। डाइवर्जिंग ही होता है ना लेंस, अभी हमने हाँ पढ़े हाँ। नहीं है. या। ठीक। कनकेव लेंस है, डाइवर्जेस अच्छा। एग्जैक्टली लाइक कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर. अच्छा हाँ या। उसका भाई होता है ये. हम्म। अब क्या होगा बताओ. एक सेकंड। तो आपको पता है क्या ऊपर लिखना होता है, क्या फॉर्मूला डजंट चेंज. या सी वन फर्स्ट बाय एफ इज डाइवर्जिंग इक्वल ही टू रहेगा। म्यू माइनस वन. हम्म ये नहीं चेंज हो जाता. तो इसकी अपनी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. इसकी अपनी। हाँ कनकेव है ना, कनकेव लेंस हाँ ठीक है। खुद नेगेटिव ही रहता है. अगर म्यू टू ये हाँ बड़ा है तो तो ये पॉजिटिव ही डाइवर्जेंस रहेगा. होगी। हाँ। पॉजिटिव हम्म ही रहेगा. तो जो उसकी नेचर है रहेगी. हाँ सो इफ वही म्यू होगा। टू इज ग्रेटर देन वन इट स्टेज डाइवर्जिंग. या। इफ इट रिवर्सेस, हम्म मतलब जो मटेरियल है अगर बाहर के मटेरियल से कम डेंस हुआ तो नेचर चेंज हो जाती है. हाँ 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 ठीक है, समझ आ गया। लॉजिक आ गया. हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं नीट के अंदर. हम्म एक लेंस में दिखा देंगे ग्लास और ये, और डरना नहीं है कोई, ऐसे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है हम्म कि कर लेंगे मतलब. ऐसे ना सिल्वरिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है. व्हेन अच्छा। यू सिल्वर वन साइड ऑफ द लेंस, हम्म देन देर आर वेज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. वो मेरे को याद नहीं आ रहा सिल्वरिंग का. इफ हम्म यू सिल्वर अ लेंस, what exactly goes on. Okay, so I'll tell you one more quality, which is when the lens when the lens actually breaks into two parts. Okay, so अच्छा। the lens actually is like this. So हम्म supposing you break it like this, the other ओके। ways you have a lens and हाँ you break it like this. Katna, हाँ हाँ। right? You can cut it like this. So या। what happens when you cut it like this, right? So if you cut it, then what happens? डिपेंडिंग ऑन फोकल लेंथ जो होती है दोनों पार्ट्स की, हाँ। वो सेम ही रहती है एज इनिशियल पार्ट. अच्छा। व्हाई विल फोकल लेंथ चेंज? ओनली थिंग इज अपर पार्ट है, हम्म रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही है ना. अ, आधा लेंस रह भी गया हाँ। तो अभी भी तो वही है, बाई कन्वेक्स. अच्छा। तो इसकी भी एफ होती है और इसकी भी एफ होती है. ओके। हाँ ठीक है। नो चेंज. हम्म ठीक है. ठीक और है। जो दूसरे वाला केस है जिसमें हमने ये ऐसे काटा है हम्म सेंटर में से, हाँ। उस केस के अंदर भी व्हाट हैपेंस, सेम. अच्छा। नो चेंज. ओके। हम्म सो ईच पार्ट हम्म, बिहेव्स एज इफ इट इज ओरिजिनल. राइट. अ- तो या। अब तो ये मैंने आपको बोला सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, हम्म दैट द फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। सेम. नाउ लेट्स लुक एट दिस. यहाँ तो प्लेनो कन्वेक्स बन गए ना. तो प्लेन। हाँ या। दिस इज व्हाट हैज बिकम ऑफ इट, राइट. हम्म इस केस के अंदर क्या होगा, द वन साइड इज रेडियस इज इंफिनिटी. या। Right? So when you calculate with infinity and you put 1 by r minus 1 by infinity,
पहले आप डालते थे 1/r माइनस 1/-r, जब पूरा लेंस था। हाँ। अब डालोगे 1/r माइनस 1/∞, तो हाँ। योर फोकल लेंथ एक्चुअली डबल्स। डबल। यार डबल नहीं होगी आपकी फोकल लेंथ अगर आप एक नॉर्मल लेंस से कंपेयर करोगे। सो दिस हम्म। इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/r। हाँ। नाउ कट इट, एक की निकाल लो इसकी, अच्छा। या कितनी आ गई इसकी? डबल हो गया। उल्टा डिवाइड करके देख लो। ठीक है डबल। ठीक है। या अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, लाइट कम हो जाती है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि अगर जब ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन की, अच्छा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इफ यूर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन हम्म। कटिंग लाइक दिस हॉरिजॉन्टली, तो हाँ। लाइट ऊपर और नीचे से ना जाके सिर्फ एक से ही जाती है ना। लाइट और एक। हाँ। पहले तो नीचे से भी जाती है, या पूरा बनता है ठीक तरह से, पूरी रोशनी जाती है, अब सिर्फ आधा लेंस रह गया है। तो जो हम्म। ऑब्जेक्ट है उसकी जब इमेज बनती है यहाँ पे, हाँ। वो डिम बनती है, उसमें लाइट कम होती है। dim, अच्छा ओके। ठीक है और ठीक है। यहाँ तो आपने लेकिन फोकल पावर में कोई कम नहीं करा, इसके अंदर लाइट पूरी जा रही है, हम्म। लेकिन कन्वर्जिंग पावर छोटी कर दी बढ़िया, अब डबल दूर जाके बनेगा। दोनों को ज्वाइन कर लोगे तो, ज्वाइन कर लोगे तो जल्दी बन जाएगा, आधी फास्ट स्ट्रांग बनेगा लेंस। तो लेंस को वीक कर देते हो अगर आप दो हिस्सों में उसको अलग अलग कर देते हो तो। फोकल अच्छा। लेंथ डबल होने का मतलब है लेंस कमजोर हो गया अपना काम करने में। लोगों को लगता है बहुत अच्छी बात है फोकल हम्म। लेंथ डबल हो गया, बट फिजिक्स बोलती है कि फोकल लेंथ बढ़ने से लेंस की जो अपनी ताकत है काम करने की, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, वो घट जाती है, इट रिड्यूसेस। ओके। तो जिसमें हम एक हॉरिजॉन्टली हाफ कर रहे हैं उसमें फोकल लेंथ इज सेम, अच्छा उसमें बट द फर्क नहीं। लाइट इज रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग है। इसमें लाइट बिल्कुल सही है आधे वाले में, बट हम्म। वीक हो गया ये लेंस, डबल हो गई फोकल लेंथ। और साथ साथ कन्वर्जिंग अच्छा कन्वर्ट एक ही वो तो बात एक है। ही बात है, चाहे हाँ। डाइवर्जेंस है या कन्वर्जेंस, दोनों ही खराब कर दोगे आप। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ। एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन उसके लिए ना यू हैव टू नो वेवलेंथ। अच्छा। कई बार समटाइम्स व्हाट दे डू इज दे विल गिव यू अ लेंस लाइक दिस, ओके, सो दिस इज योर लेंस, so this is mu1, this is mu2, this is mu3, this is mu4 and this is mu5। ओके। आपने तो ऑब्जेक्ट को ऐसे भेजा है, हाँ। राइट? सो या व्हाट दे हैव, नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द फोकल मटेरियल इतना डिफरेंट है, हर जगह से हम्म। बेंडिंग अलग हो रही है, या तो हर इंडिविजुअल पार्ट का जो अपना वो है। आप एक येलो लाइट ले लो यहाँ पे, अच्छा। तो हर पार्ट अलग अलग बेंडिंग करेगा। या So you will have aberration, right? You will have maybe one image getting because bending is very high, refractive index is very high, हाँ। हम्म। and sometimes the bending is very low, हम्म। weak। या तो आपको एक ही लाइट अलग अलग पार्ट से पास करने में अलग अलग पॉइंट पे लगेगी, तो वो ऑब्जेक्ट जो है अगर पूरा का पूरा रख दोगे, वो हम्म। फट फट जाएगा, फैल जाएगा, मतलब आपको एक पॉइंट नहीं नजर आएगा फोकस का। अच्छा। क्योंकि वो जब उधर से पास होगा तो अलग बेंड होगा, तो एक पॉइंट सर, नॉर्मली तो दे शुड कन्वर्ज ऑन द सेम पॉइंट, या बट दे विल नॉट। या ठीक फिर अगर नहीं करेंगे तो। फट जाएगा, तो इट विल हैव डिफरेंट फोकल पॉइंट्स, सो इट विल हैव मल्टीपल फोकल लेंथ्स। जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डालते जाओ, उस पार्ट की फोकल लेंथ आ जाएगी। अच्छा लाइक क्वेश्चन में फिर लाइक बोलेंगे कि किस पार्ट से निकालना है। किस पार्ट से सबसे वीक फोकल लेंथ होगी। मतलब सबका लाइक निकाल के देखना पड़ेगा। हाँ, अच्छा ओके ओके। सब अलग बेंड कर रहे हैं। या ठीक है। भाई जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है,
हम्म। बेंडिंग बहुत करता है ना वो, हाँ। फोकल लेंथ उसकी सबसे कम आएगी, अ, जल्दी कन्वर्ज करा देगा ना वो। जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा अच्छा है, होगा, मतलब हाँ सबसे ठीक। ज्यादा ताकतवर है। या ठीक है। सो यू हैव मल्टीपल फोकल पॉइंट्स इन दिस केस, यू कांट रियली से कि एक ही है। हम्म। तो वो ओके। वेवलेंथ का एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी आपको पता नहीं उसके बारे में, हम्म। तो फॉर द टाइमिंग इट्स फाइन इफ यू डोंट नो, बट लेटर वी विल डू दैट। ओके ओके। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमने कर लिया, हम्म। राइट, मतलब जो लेंस की नेचर है वो बदल जाती है, वो हमें पता है। या। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर हो जाए और बाहर रेयरर हो जाए, हाँ। उल्टा हो जाता है, राइट। सॉरी, सेम ही रहता है, अगर बाहर चेंज हो जाए और हम्म। डेंसर हो जाए तो चेंज हो जाता है। लेंस का तो जो है वो है। हम्म। न्यू वाटर हो गया था तो सेम ही रहा था ना, 1.3 1.6 टू 1.3। हाँ बट हाँ। अगर 1.9 कर दोगे तो वो म्यू चेंज। माइनस वन जो है वो हम्म। नेगेटिव हो जाएगा, तो लेंस की नेचर चेंज हो बदल जाएगी। जाएगी। या। तो थोड़ा सा आपको लेंस के बारे में कम पता है, हम्म। लेकिन जब लेंस के बारे में थोड़ी सी और डेवलपमेंट आ जाएगी आपके दिमाग में तो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा। बट हमारा मेन फोकस क्या था, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो हमने उसकी बड़ी सारी वैरायटी, बहुत या। सारी वैरायटी देखी। अब जो वो कॉन्सेप्ट होता है, हम्म। जब आप एक साइड से करते हैं सारा का सारा वो, उसमें जब आप वो निकालते हैं या। अपना म्यू टू बाई वी, वो एक नया था, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स, जब एक ही वो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। अच्छा, वो हमने पढ़ा ही नहीं है। दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। तो हमने पढ़ा नहीं है, उसको छोड़ दो, अभी कर नहीं सकते अभी हम उसे। जो अभी एक नया फॉर्मूला लिखवाया था हाँ, क्या मैंने बोल। लिखा था ना म्यू टू बाई वी हाँ हाँ या। अच्छा। अपॉन माइनस, वो हमने पढ़ा नहीं है, ओके। दैट इज नॉट लेंस मेकर फॉर्मूला, ऑल्दो इट मिमिक्स इट। हम्म। उसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट द हम्म। टॉपिक इज डिफरेंट, द टॉपिक वी हैव येट टू स्टार्ट। इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑन अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अच्छा। माने एक ही सरफेस पे रिफ्रैक्शन। अच्छा। वो हमने ठीक पढ़ा है। ही नहीं है, तो उसको भूल जाओ, इसलिए वो हो नहीं सक रहा था, क्योंकि मैं जबरदस्ती लेंस मेकर फॉर्मूला उसमें लगाने की कोशिश कर रहा था। वी हैव नॉट डन दैट टॉपिक, ओके ऑलराइट। ओके। और जो करना है अभी। हाँ, करना है अभी। पढ़ना है, अच्छा। पूरी उसकी थ्योरी है अपनी, राइट। तो वी हैव अच्छा। नॉट डन अ ओके ओके। इंच ऑफ इट, तो हम उसमें वो, आई मिक्सड अप एक्चुअली द लेंस मेकर फॉर्मूला विद द रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। ओके। वो अलग तरीके से सॉल्व करा जाता है, म्यू टू बाई वी आता वहीं से है लेंस मेकर फॉर्मूले से, बट वो उसमें एक ही स्फेरिकल सरफेस होता है बस। हम्म। उसमें इमेज और ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है, लेंस बनाने पे कम फोकस है। तो हमने अभी इमेज और ऑब्जेक्ट के तो करने ही नहीं ना, अभी रुक जाओ, इसलिए अच्छा ठीक है। वी डोंट हैव टू डू, देयरफॉर आई वाज स्ट्रगलिंग माई सेल्फ कि करें कैसे फिर, है ना। तो क्योंकि वी कहाँ से नापना है, यू कहाँ से नापना है, दैट हम्म। बिकेम डिफिकल्ट। बट जैसे ही हम उसकी साइन कन्वेंशन और वो फॉर्मूला देखेंगे, तो आई हम्म। थिंक वी विल बी एबल टू डू इन अ सेकंड, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज आई सेइंग, अपर्चर। तो वर्चुअल। जो लेंसेज ज्यादा लाइट पास होने देते हैं अपने थ्रू, राइट, हम्म। व्हाट वी से उनका अपर्चर बड़ा है, लाइट कैप्चरिंग कैपेबिलिटी, अच्छा। राइट। सो लेंस के पास एक तो फोकल लेंथ होती है, हम्म। लेंस के पास एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, जो उसका हाँ सेंटर होता है हाँ हाँ। बिल्कुल जी बीच में, राइट। एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, हम्म। थोड़ा लेंस के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, राइट। हाँ हाँ। और लेंस का एक दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। हम्म। ठीक है। फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड, एक फोकल लेंथ हाँ। होती है। हम्म। एक लेंस का ना अपर्चर भी होता है, सो इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस। इफेक्टिव अच्छा इफेक्टिव, असरदार डायमीटर ऑफ द, वो एरिया ऑफ द लेंस अच्छा। जहां से ब्राइटनेस पास होती है, लाइट आराम से पास हो जाती है। बट लाइक डायमीटर तो दोनों साइड पे है ना। हाँ, तो तो आप दो तो एक होंगे साइड से टोटल। भेजोगे ना अच्छा अच्छा। लाइट,
एक टाइम पे एक साइड से भेजोगे। तो हम्म जो अभी ये पढ़े नहीं हमने कॉन्सेप्ट, में वैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो हम्म इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, वो कितना इमेज डिम बनेगी या ब्राइट बनेगी, हम्म इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अपर्चर। इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल टू, एफर्ट। हाँ। तो कई बार क्वेश्चन आता है, अपर्चर दिया होता है, बोलते हैं इंटेंसिटी, अपर्चर इज डबल्ड। कैमरे होते हैं ना घरों में जिससे फोटो खींचते हैं, कैमकॉर्डर्स होते हैं, हाँ। उनमें आगे जो जगह होती है वो अपर्चर होता है, सामने जो लाइट गैदरिंग के काम आता है, अच्छा। लाइट पकड़ने के काम आता है। ज्यादा से ज्यादा लाइट आएगी तो अच्छा वो फोटो आती है, बोलते हैं ना लाइट अच्छी लाओ। लेकिन हम्म। अपर्चर भी खोल के रखना पड़ता है, और हमारी आंखों में भी अपर्चर है लेंस में। अच्छा अच्छा ओके। तो हमें ब्राइट और वो नजर कैसे आता, नहीं तो, राइट। सो हम्म। अपर्चर इज बेसिकली सम physical parameter which is called as a diameter. अच्छा ओके। या। Okay, the diameter of the lens, हम्म which is from where the light passes through it. So why is हम्म, it important? Because it decides the intensity of the image. अच्छा। So my point was to tell you there is something called as aperture. अभी तो हम पढ़ा नहीं हमने अभी इस तरह से लेंस को, क्योंकि हमें हम्म इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर करी है। अभी हमने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस करनी है। बट हाँ हमने लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत अच्छे से कवर कर लिया हाँ राइट राइट या। है। वो क्लैरिटी है, काटा पीटी हम्म हॉरिजॉन्टल प्लेन में या। सेम रहता है, वर्टिकल में डबल हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। या। दैट पार्ट इज क्लियर आई गेस। या इट्स क्लियर। हमने अभी हमने लेंसेस करा नहीं है, तो डेफिनेटली वी विल फेस द प्रॉब्लम कि कैसे हम इसे काटें। तो अगर आपने दो लेंस रखे, हम्म राइट, इफ यू कीप टू लेंसेज, राइट, सो यू कीप वन लेंस लाइक दिस। ये लेंस था आपका, आपने इसे काटा और दोनों को ऐसे रख दिया साथ साथ, हाँ ठीक है। राइट। तो लाइट आएगी इसकी फोकल हम्म लेंथ हम्म और इसकी फोकल लेंथ, राइट। सो या। दो फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/f प्लस 1/f। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, अभी पढ़ना है हमने, बट हम्म आंसर विल बी 2/f, अच्छा। कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ कट लेंसेस। तो अभी भूल जाओ, ये सेपरेटली पढ़ेंगे हम। आप सिर्फ ध्यान रखो कि आपको लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आ गया, हाँ बस। दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, बाकी सब बोनस था जो सीख लिया आपने। ओके ठीक है। कटेंगे वो ठीक है, जब लेंस पढ़ेंगे तब पढ़ने में फायदा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं मैं। जैसे लेंस हम्म मेकर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, या। फलाना ढिकाना, राइट। सो लेट्स स्टे फोकस्ड एंड ओनली वरी अबाउट द हम्म लेंस मेकर फॉर्मूला, दैट्स ऑल। अब उससे पहले कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक है। लेट्स हम्म मीट टुमारो। आर यू अवेलेबल टुमारो और यू स्टिल गोइंग टू स्कूल? नहीं कल तो छुट्टी है। तो लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग ओके। 8 AM। उठ एट जाओगे? नाइन तक। क्योंकि मेरे को ना आई कैन टीच यू फ्रॉम 9 to 10, हम्म and then I have to jump to some other place. I have a Zoom meeting with someone. So तो if लाइक you अराउंड 8:30 इज 8:30 फाइन। is good, 8:30 to हाँ 10 is good. ओके या। So let's meet at 8:30 tomorrow and या study till 10. ओके।